So again, welcome in another podcast. आज हमारे साथ है नेहल. शी इज़ प्लेस्ड एज अ वेदरफोर्ड एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी. और इसके अलावा नेहल ने अपने इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर किए हैं. उसमें शी वाज एक्स चेयर पर्सन एट IIT RIT. इसके अलावा सीनियर एडिटर इन चीफ थी वॉल में. इसके अलावा इसने 3 मैगजीन्स पब्लिश किए उसके अंडर. और सबसे मेन बात, शी वाज पॉडकास्ट होस्ट एट कोडर्स. उसने बहुत सारे पॉडकास्ट कवर किए हैं और बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है अब तक के. तो पूरे ऐसा जो अपने इंजीनियरिंग के एडवेंचरस जर्नी के साथ आज हम जानेंगे कि नेहल ने कैसे उसका प्लेसमेंट का जर्नी पास किया. क्योंकि कुछ लोगों के लिए मतलब बहुत मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये जर्नी जो है वो बहुत ट्रॉमेटिक जर्नी होता है प्लेसमेंट का. तो आज हम जानेंगे कि नेहल ने कैसे वेदरफोर्ड में लैंड किया, क्या क्या टिप्स ट्रिक्स यूज़ किए, कौन से रिसोर्सेस यूज़ किए, ये सारा इंसाइट आज हम नेहल से लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन नेहल. Thank you so much. Thank you so much, Omkar. And thank you so much for the introduction. I do miss CodeOS because this platform has given me confidence and has, you know, बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. So I think it has been my biggest motivator during the placement season. So yeah, I miss CodeOS. Now coming back to Weatherford. So it has been a very long placement journey, and to be honest, there have been moments that were bound to be traumatic, and it is bound to be traumatic, to be honest. So first, I would start with the timeline. So first, there were a lot of companies coming, like mass recruiters are it. So I did apply for those companies, but my luck was really bad, or I think I did not give the exam too rightly, I suppose. I did not get selected for any of the mass recruiters, which came शुरुआत के TCS आए थे. I think TCS ही था शायद. TCS के बाद जब TCS में नहीं हुआ, then came Select Controls in August, I suppose. And I did apply for it, and हो गया उसमें. And it was an offline interview, and it is a core company. So we basically had questions about maths, all the subjects that you study in EXTC. So वो ज़्यादा वहाँ relevant थे. So I was asked questions about networking because that is some subject that I love. So networking और maths के questions, Laplace transform के formulas. It was very unexpected, but I did get through it, and then I got selected. It was a dream placement. ओके. Okay. Now, since I landed Select Controls, I was barred from applying for placements जो उससे कम थे. मतलब अगर मुझे ड्रीम प्लेसमेंट से कम वाले प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करना था तो मैं उसमें बैठ नहीं सकती बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी प्लेस्ड इन अ ड्रीम कंपनी. सो मुझे 7 लाख के ऊपर वाले ही अलाउ थे बैठने के लिए. So मेरा वही था कि during that process I used to only apply for companies which were more like for 10 lakh package or for 12 और जो भी 15 के जो भी नए नए कंपनीज आते थे. And I deep down knew that I was not I technicality is not my strength. So I did not pass those exams, and and as well that मुझे select control उतना पसंद नहीं था when I did land up that job. So I was grateful for it because I landed one job, but I wasn't too happy to be there because it wasn't something that I wanted to pursue, and it wasn't my core strength, to be honest. So I was looking for different jobs. I was like, there were many companies below the dream package जो आए थे, but मैं बैठ नहीं पाई थी उसके अंदर. So फिर there was some conflict in joining Select Controls, and that day I came to talk to the TPC officer, and I came and I talked to him about the problem. And luckily, Weatherford's pre-placement talk was going on that day. Oh, So I really believe that it was destiny. I really believe that, and I'm very grateful that I was there that day at that same time when that exam was about to start. So pre-placement talk though I missed. I did not know anything about the company.
So I went on. I asked my friend, "Should I like? Can I sit for the exam?" He said, "Everyone can sit for the exam. You can write your name." So I gave the exam. Now I'll explain you the process now. So we had Okay. one pre-placement talk, and हाँ it's a dean placement offer, Weatherford. हाँ And for the exams, we had technical questions based on Windows, and then there were few questions about SQL. But all in all, it was moderately easy. If हाँ you have been through the placement process for like a year, like you have been through everything, through all the tests, different tests, logical reasoning, and then other exams that non-tech या tech exams अगर आप उसके through गए हो then it हाँ as compared to that it was moderately easy, but the deciding factor was this paragraph that we had to write. So they did ask us share your experience about something where you had an impact. हाँ So I did share my extracurricular parts where I have managed a certain kind of people. I had people from diverse background. So about that experience and about my magazines as well as academic achievements. So in that particular paragraph. So I think हम्म, that was the deciding factor. So me and Siddesh, we did get selected. There were few other people who got selected, but only I'm aware of Siddesh. So हम दोनों का selection हुआ. Now there are two interview processes for Weatherford. हम्म, First, normal interview था. It was with our manager. So he went through a resume. So what? So my job role is both basically interview was offline, right? one interview was online, but Okay. you had your cam on, हम्म, and the second interview was in the office with the global support executive. So there okay. was this American guy. His name is Eric Kramer, and he came in for the interview, and it ran pretty long. I'll just share that experience. So first we had he went to what Weatherford wanted. First, I'll go through that. So हमारा जो role है it's in support, it's in customer relation. So Signet is a software about oil and gas industry. So there are people who, so we provided it to our service providers, and now they are using it. Now they are having some problem with it, so they will report it to us. So we will go on call. So as an engineer, I'll go on call with him and I'll solve their problem regarding that software. So basically, what they wanted is someone who can speak up their mind, who has ability to troubleshoot problems. So these were two things that, and who does not give up on any question. So these were three things that they needed, and therefore they went through extra that went after the extra curriculum too often. So they went through my resume. The manager went through the resume and he asked each question about everything. So my project, what project I did, what role did I play, and मुझे लगता है शायद एसेंचर का भी ऐसे ही था. नहीं मैंने नहीं दिया था आई Accenture। थिंक एसेंचर के इंटरव्यूज मैंने में भी. जितना मुझे पता है कि मैंने सुना था कि एक्सेंचर में बेसिकली ओवर शॉर्ट में सारी चीजें होती थी, इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट और बस हाँ 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 लाइक पंद्रह दैट. बीस सो मिनट के इंटरव्यू ऐसे। हाँ, सो माइंड रन आई गेस 1 आवर, 1 आवर भी नहीं बोल सकते, 1 आवर 30-45 मिनट्स गया था. सो उसमें ही वेंट ही मतलब स्कैन माई पर्सनैलिटी कि मैं हाँ कैसा एक इंसान हूँ. टीम वर्क, हाउ डू आई कम्युनिकेट, हाउ डू आई वर्क इन अ टीम, हम्म, एंड डू आई गिव अप ऑन एनी क्वेश्चन. सो देयर वाज दिस वन लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन. हाँ उसने पूछा था कि वी हैव उन्होंने पूछा था कि एक फुटबॉल है और हाँ उस एक फुटबॉल को हाउ मेनी फुटबॉल्स कैन यू फिट इन अ रूम. सो आई वो वेंट ऑन मैथमेटिकल अबाउट इट कि तो उन्होंने बोला कि आपको फुटबॉल का एरिया वॉल्यूम पता है. तो मैंने बोला नहीं, तो आपको मेरे को पूछना चाहिए था ना. So हाँ that was the key lesson in customer relation that he said. कि if you हाँ want to excel here, you don't have to give up and you have to ask questions. हाँ So it pretty much went very well, and then we went on for the next round. Now हाँ this was with the global support executive. So Eric is my manager's manager. ओके
Okay, so he came down from America. There were a few of us that was selected from MIT Pune, and then there was us from RIT. These two colleges primarily we had people from there. नाउ ये हमारा घंटा भर का घंटे से ज़्यादा भर का इंटरव्यू गया और हाँ इसमें इट वेंट ऑन फ्रॉम माय मॉडल यूनाइटेड नेशंस एक्सपीरियंस फ्रॉम मी बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ अ committee, and then how did I work in a team. I even explained him my whole project from top to bottom, as well as like future scope for it, everything. So he was genuinely interested in knowing what I am as a person. So, and same for Siddesh, I would say. He was the vice president of the sports committee. So, and so same for him. So there was questions related to his extracurricular, everything about it, everything how passionate is about his life, like that. So we had questions about that, and thankfully we both got selected, and we landed the job. And it's been like 2 months now, and I think it was. I'm very happy here in sense that I wouldn't be happier in select as much as I am happy here because I get to talk, I get to know people. There is cross cultural experience. So I have people. So I work in the night. I have night shift हाँ and as well as remote work. सो तो काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ा है मेरा अमेरिकन लोगों के साथ. सो माई मैनेजर इज एन अमेरिकन. सो आई सो दैट क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस फर्स्ट देन टॉकिंग और वैसे लर्निंग अबाउट सिग्नेट वो हाँ भी एक अच्छा ही एक्सपीरियंस था. एंड ऑल्सो आई यूज EHTC थिंग्स इन माई जॉब. सो दैट इज ओके वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि हाँ मैंने कुछ अलग नहीं चूज किया. तो बेसिकली पूरा कोर का नॉलेज यूज हुआ प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में मतलब इंटर हाँ, प्रोसेस के हाँ मेरे पूरा एक्सपीरियंस लाइक जो एक्स्ट्रा करिकुलम वही एक्सपीरियंस मैंने किया. लैपलास के फॉर्मूलाज इक्वेशन तो अरे वो थोड़ा थैंकफुली अलग है था हाँ वही. अरे बिकॉज मेरे को कोडिंग बहुत स्केयर करती है यार. हम्म, आई एम लाइक दिस इज समथिंग आई डिड नॉट लाइक एंड आई वोंट लाइक एट ऑल एवर. नहीं सो रे राइट बराबर है नहीं, व्हाट अबाउट यू लाइक मतलब तेरा ऐसा बता कि यू यू आर एन EHTC इंजीनियर. हाँ डू यू लाइक दैट सब्जेक्ट्स दैट यू लर्न? इफ यू डोंट देन ऑब्वियसली यू विल लव कोडिंग. बट इफ यू ओके डिड देन अगर तेरा पढ़ाई काम नहीं आ रहा तो कैसा तुझे फील होगा वो मैं पूछ रही हूँ. तो बेसिकली मुझे भी पसंद नहीं थे सब्जेक्ट्स जो अपने है यूएचसीसी के बट आई लाइक द इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग मतलब जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसमें हम लोग एक्चुअल रियल वर्ल्ड चीजें करते हैं जैसे कोई ड्रोन बनाना हो क्या बोलते हैं बॉट्स बनाने हो सो दैट पार्ट इज इंटरेस्टिंग इन यूएक्सटीसी बट उस पे बहुत कम फोकस किया जाता है तो इसके लिए वो सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग पसंद नहीं आते समझा. मतलब यू इट्स नो. राइट राइट हाँ Yeah, but one thing is very useful. नेटवर्किंग नेटवर्क जो आता है ना ये हाँ काफी यूज होता है मेरे जॉब में. है हाँ इसका वो तो यूज है है. तो मैंने वायर शार्क देखा मेरे मैनेजर के उसके ऊपर. मैंने बोला यार मैं बहुत खुश हुआ आज यहाँ रह के कि मैंने कोई तो काम कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने पढ़ाई की है. सो आई वाज लाइक आई एम हैप्पी हियर. तो ये अच्छी चीज़ है तो अभी आते ये तो हुआ ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस सो ये प्रोसेस के लिए कैसे प्रिपेयर किया मटेरियल्स कहाँ से मटेरियल एंड रिसोर्सेज कौन से यूज किए कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए और अच्छा. ये सारी चीज़ें कि कौन से रिसोर्सेज और कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए टू गेट क्रैक द असेसमेंट और अच्छा. इंटरव्यू हाँ ठीक है. ओके. नाउ आई स्टार्ट कि मुझे वेदरफोर्ड में मतलब अप्लाई करना था वो डेस्टिनी से हुआ पहली बात तो. हाँ सो अरे फर्स्ट थिंग प्लेसमेंट जब तो मोस्ट ऑफ तो डेस्टिनी के वजह से ही होता है यस इट इज लाइक लोग बोलते हैं बट हाँ मेरे को तो लगता है 50% सिर्फ लक है. अगर तुम रैंडमली जाके किसी उसमें बैठ भी जाओ ना तुम्हारा हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा. वही जस्ट ट्राइंग या ट्राई इसलिए मैं करते जूनियर्स रहने में को हाँ वही. और मैं जूनियर्स को कॉल कोई जूनियर्स कॉल करता है तो मैं उनको बोलती हूँ भाई तू हर एक एग्जाम में बैठ हाँ इररिस्पेक्टिव यू फील प्रिपेयर्ड और नॉट क्योंकि कुछ हम्म, भी हो सकता है. इट्स वही वेरी अनएक्सपेक्टेड.
तो ये सो सारी तो चीजें आती है। तो अभी हाँ, मटेरियल्स और रिसोर्सेज। हाँ, तो फर्स्ट जब सिलेक्ट हुई तो उसके अंदर क्वेश्चंस थे, एसक्यूएल के थे, विंडोज ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस थे। तो ये जो बेसिक आउटलाइन मेरे को मिला था कि शायद इसके ऊपर क्वेश्चंस इन लोग पूछेंगे। सो विंडोज ट्रबल मैंने क्या किया, आई लर्न एवरीथिंग टू चैट जीपीटी। सो मैंने पहले वेदरफोर्ड का ऐसा पूरा लिस्ट बनाया, लर्निंग अबाउट द कंपनी फर्स्ट, फिर उनका क्या क्या सर्विसेज है, फिर स्कैडा करके एक वर्ड आया था कि स्कैडा करके विल यूज करके। सो आई लर्न अबाउट स्कैडा कि क्या होता है, मतलब बेसिकली कंपनीज में जो सुपरवाइज करती हैं सॉफ्टवेयर्स पूरे प्रोसेस को, उनको स्कैडा बोलते हैं। तो मैंने स्कैडा के बारे में पढ़ा, एंड देन वेंट ऑन टू लर्न बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल और वो सारे। बट मेरा वो एसक्यूएल और जितना भी टेक्निकल चीज़ें जो मैंने पढ़ी, उसमें से सिर्फ लर्निंग अबाउट विंडोज एंड विंडोज शॉर्टकट्स एंड थिंग्स, मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, वही काम आया। बिकॉज इन माई सेकेंड इंटरव्यू वी हैड ट्रबल शूटिंग क्वेश्चंस। सो जैसे हमें नोट पैड, द क्वेश्चन वॉज, आई एक्सप्लेन टू यू, हमें लैपटॉप दे दिया गया था, ऑन दैट स्क्रीन नोट पैड का आइकॉन था। सो व्हेन आई क्लिक्ड ऑन दैट नोट पैड आइकॉन, इट लेड मी टू अ डिफरेंट एड्रेस। नोट पैड नहीं खुल रहा था, कुछ और ही खुल रहा था। सो ही वॉज लाइक, एरिक वॉज लाइक, जस्ट गेस वॉट द प्रॉब्लम वुड बी। सो आई डिड ट्रबल शूटेड फॉर लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, 20 मिनट मुझे लग गए थे पूरा उसको ट्रबल शूट करने में। बहुत कुछ किया, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ गई। एंड देन द प्रॉब्लम वाज कि जो उसका नाम होता है व्हेन वी क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, उसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा था। दैट वाज द हाँ। रीजन व्हाई इट वाज लीडिंग अस टू अ डिफरेंट लोकेशन। सो आई डिड क्लियर दैट आउट, और बहुत मेहनत करने के बाद मैं वहाँ पहुंची, एंड ही इवन ही हेल्प्ड इट। सो द थिंग इज, यू डू नॉट गिव अप। अगर मैं वहाँ बोल देती कि मेरा नहीं हो रहा, तो हाँ। वहाँ शायद मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होता कि मैं नहीं सिलेक्ट होती। बट मैंने हाँ। क्या किया, इवन तो मैं कुछ नहीं समझ रहा था, जब पूरा एकदम डेड एंड आ गया था, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसमें कर रही थी कि लेट मी ट्राई हाँ। दिस, लेट मी ट्राई दैट, लाइक दैट। सो आई डिड नॉट गिव अप ऑन द क्वेश्चन, एंड ही डिड नॉट गिव अप ऑन मी। हम्म। So he was indirectly trying to say, okay, now what you see, can you compare it? Okay, ओके। now he was trying to bring me to the answer because I did not give up. So that was one thing that is my prime takeaway from a Weatherford interview for a support engineer. Do not give up on any question. हाँ, फिर बेसिकली चैट हाँ। जीपीटी से, हाँ, तो चैट जीपीटी से पूरा पढ़ा, एंड देन उसके बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट इंटरव्यू के एंड में आई डिड आस्क कि नेक्स्ट इंटरव्यू में क्या होगा। सो द ओनली थिंग दैट माय मैनेजर सेड दैट यू डू नॉट गिव अप ऑन एनी क्वेश्चंस, ओके, जस्ट आंसर। मैंने बोला ओके, एंड देन एवरीथिंग दिस फ्लोड। अब तू कुछ बोल रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं नहीं, जस्ट कंटिन्यू। बोल दे बोल दे। नहीं नहीं नहीं, बोल। तो ए रिसोर्सेस यूज किए हैं। हम्म। तो अभी अभी आते हैं डूज एंड डोंट पे, कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यूज पे। हाँ, ये तो है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एनीथिंग यू वांट टू ऐड? Did you have any experience like that कि तू कोई क्वेश्चन पे डेड एंड आ गया था किसी इंटरव्यू में, एंड देन यू वर लाइक अब तो मैं कुछ भी बोलूंगा। बस इतना मुझे पता है कि कोई भी आंसर पे चुप नहीं रहने का है। जस्ट हम्म। आंसर देने का, भले राइट हो या रॉन्ग हो, अपने को आंसर यस। देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रॉन्ग आंसर देते हैं, फिर भी इंटरव्यूअर अपने को मतलब हैंडल कर लेता है कि कि एटलीस्ट इसको, हाँ, इसका दिमाग चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा हाँ पॉज हो गया है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं चाहिए, भले आंसर रॉन्ग हो या राइट हो। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में, हाँ यही चीज है, यही हाँ, राइट है, ये भी नहीं अडामेंट नहीं करना। रहना। अगर वो सामने वाले ने करेक्ट कर लिया है तुमको, तो हाँ। तुम मान लो कि हाँ, दिस इज नॉट हाँ, राइट। अगर वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस का एक है मतलब। ओके, ग्रेट टू हियर दैट। अभी डूज एंड डोंट्स है ऐसे। अब हाँ, पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस का बोलूँ कि सिर्फ वेदरफोर्ड के इंटरव्यूज का बोलूँ? पूरा बोला तो भी अच्छा ही होगा।
अच्छा ठीक डूज एंड है। डोंट्स। डूज एंड से कि जैसे क्या होता है कि इंटरव्यू सबके सेम ही नहीं होते। इंटरव्यू में मतलब एक उनका पैटर्न सेम होता है, बट सबके इंटरव्यू सेम नहीं जाते ना। किसका इंटरव्यू 20 मिनट में होता है, किसका 1 घंटे में होता है, किसका हाँ वो अच्छा भी जाके भी नहीं होता, किसका बुरा जाके भी हो जाता है। है। डिपेंड मतलब पूरा मतलब नॉट कंप्लीट जनरली ऐसा एक बोला। वो नहीं है थिंग कि जितनी लंबी इंटरव्यू होती है उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये हाँ इंसान सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ ये एक होता है, तेरे साथ ऐसा हुआ है कभी कि मतलब हाँ तेरा मेरे बहुत साथ। अच्छा इंटरव्यू गया, बहुत लंबा गया एंड यू आर लाइक कि भाई ऐसा लग रहा है कि ठीक है सिलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ ऐसा लगा है मुझे। मैंने एक्सेलिया करे एक कंपनी थी, उसका दिया था। हम्म। मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर का था वो इंटरव्यू। ऑफलाइन था विक्रोली में ऑफिस में। तो वहां पे मुझे लगा था कि हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे, बट ऐसा लग रहा था कि हाँ होगा करके। बट नहीं मतलब हुआ। ठीक है। इट्स और ओके। ऐसा भी था कि किस किस का ऐसा इंटरव्यू इतना भी खास नहीं गया, बट हो गया मतलब। ओके, समझो। वही बोल रही हूँ, लक, 50% लक। मैं तो लक। डूज में ये बोलूंगी कि रोज भगवान की पूजा करो। हाँ ये तो सही बात है। अंगूठी वंगूठी पहनो कुछ अच्छा। हाँ ऐसा ऐसा पहना करो। हाँ। आई डोंट वेयर एनीथिंग, सी, हाँ आई हैव गॉड्स ब्लेसिंग। तो हाँ, डूज आई से कि पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा एंड यू आर वांट टू गेट इनटू द। तो देयर वाज, जब मेरा मास रिक्रूटर्स नहीं उठा रहे थे, सो आई वाज वेरी demeaning myself खुद से कि maybe I'm not, see I'm a very like I would say that I did well academically और मेरा अच्छा था रिकॉर्ड। तो मेरे को ऐसा लगता था कि इफ आई डिड so much for studying engineering, why हाँ aren't they thinking कि मैं एक अच्छी इंजीनियर हूँ। मतलब मेरा प्लेसमेंट होना ना होना मेरे अच्छे इंजीनियर या ना अच्छे इंजीनियर होने का एक डेफिनेशन बन रहा था, समझ रहे हो। सो आई डिड हाँ गेट डिप्रेस्ड, रात को स्लीपलेस नाइट्स भाई, 3-3 बजे तक। देखो हुआ होगा, तब ऐसा मैं बोल रही हूँ सबको हुआ होता है। रहेगा ये टेंशन हाँ भाई ऐसा नहीं हुआ यार, टेंशन हो रहा है बहुत, कैसे क्या होगा। सीन क्या होता है कि अभी हमारे दोस्त होते हैं जिसने कुछ पढ़ा नहीं होता, उसका हो जाता है, और हमने समझ मेहनत किया है और हम लोग का नहीं हो रहा है। तो उस वो तो और ऐड ऑन करता है मतलब क्या क्या गलत हो रहा है हम लोग का, मतलब नॉट वही जेलेसी। मतलब करके भी नहीं, जेलेसी नहीं बोल सकते हम लोग इसको, कि ऐसा है कि हम बैड लोग का लक, क्यों नहीं हो रहा है। हाँ बैड लक आई वुड से। बट इट्स ओके, मतलब वो जब प्रोसेस जब ऐसे से फ्लो होने लगा ना, तब हाँ रियलाइज हो, पहले तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट समझा कि और एकेडमिक्स मीन्स शिट। तुम्हारा स्किल्स ही सब है, हाँ तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, हाउ डू यू डील विद पीपल, व्हाट लैंग्वेजेस यू नो, हाउ डू यू कोड, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, दैट इज द ओनली थिंग दैट कंपनीज नीड। तुम अगर मॉडरेटली भी ओके हो एकेडमिक्स में तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मे हाँ बी दे आर अवेयर ऑफ द इंजीनियरिंग, हाउ इंजीनियर्स वर्क और हाउ द बेसिकली। सिस्टम गोज। हाँ बेसिकली उनको भी पता है कि जो हमें सिखाया है वो तो उनके कंपनी को लगने नहीं वाला है। हाँ तो दे आर मोर ओरिएंटेड ऑन स्किल्स, कि हाँ कि ये बंदा बाहर से कितना सीख रहा है, कितना सीख सकता है ये, खुद से कितना क्या कर रहा है। तो मे बी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई कंपनीज के लिए। वही, और ये सारे टाइम पे ना मे बी आफ्टर थर्ड ईयर पीपल शुड डिसाइड देयर प्रायोरिटीज। हम्म। जैसे अभी मैं ये बोलूँ कि अगर इफ यू आर एमिंग फॉर गेट, इफ यू आर एमिंग फॉर सम वेरी टेक्निकल लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज और कुछ ऐसा बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम्स का अगर तुम वो कर रहे हो, एम कर रहे हो, हम्म, सो इट्स वेरी ओके फॉर यू टू बी academically inclined, studying हाँ for 6 hours 7 hours your subjects that you have been given in college। इट्स वेरी, मतलब अगर तुम पहले से प्रायोरिटीज डिसाइड करके रखे हो कि एंड में हाँ तुमको ये सारे एग्जाम्स देने हैं, बट इफ योर प्रायोरिटी इज गेटिंग प्लेस्ड, देन बेसिकली ग्रैब योर कंपनी, उसके बारे में सब पढ़ लो कि उसको क्या स्किल्स चाहिए और तुम हाँ अपने स्किल्स प्रैक्टिस करो ये साल बैठ के, हाँ इंस्टेड ऑफ लाइक
been so proud of your सूडो एकेडमिक्स लाइक कि तुम्हारा उधर हेल्प नहीं हो रहा है ना. अगर यस अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विस देती तो आई कुड हैव ब्रैग्ड अबाउट इट इन दैट सेंस कि भाई ठीक है मेरा अच्छा है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रही ना वो. सो दैट डज मतलब वो काम नहीं आया मुझे ऐसा बोल. इट डज क्रिएट अ गुड इमेज बट मोस्टली तुम्हारा मॉडरेट एकेडमिक्स एंड मोर स्किल्स ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए हाँ, ऐसा. और डोंट्स आई वुड से नॉट सिटिंग थ्रू द प्रोसेस ये तो like बात सही है। skipping interviews even after you get selected in exams. skipping I mean मतलब तुम्हारा सिलेक्ट हो गया बट तुमने इंटरव्यूज नहीं दिए और फिर उसके बाद तुमने एग्जाम ही नहीं दिया. हम्म, मतलब ऐसा बोल रही हूँ कि इफ यू डू नॉट लाइक दैट कंपनी तो ठीक है, तुमको जाना ही नहीं है उस जगह पे तो ठीक है. बट अगर तुम अगर एक बेसिक कंपनी के लिए ही जा रहे हो सो यू शुड अप्लाई फॉर एवरी कंपनी आई थिंक, क्योंकि प्रोसेस में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं. हम्म, नहीं ये तो सही है बात, क्योंकि क्या पता समझ किस में अप्लाई किया और किस में हो जाए, ये भी चीज है। हाँ कुछ वही. कुछ मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स है ना, वो समझो कि 10-12 वाली कंपनी है तो उनका पैकेज देख डर के नहीं बैठती। ऐसा ऐसा होता भी है. लोग देखे थे मैंने। अरे इवन आई गॉट स्कैर्ड कि मेरा नहीं होगा ये सारे कंपनीज में तो नहीं हुआ. लेकिन मैंने बैठ ऐसा नहीं था कि मैं बैठी नहीं, सबके हाँ, लिए बैठा बट मतलब नहीं हुआ उसके अंदर. मैं बोली ना टेक्निकलिटी इज नॉट माय स्ट्रेंथ. वो तो One है। of the outputs from my interviews was this कि Nehal, I do think that you need to improve on your technicality, but you have great communication skills that we cannot teach you. So, are you back, Omkar? Yes, yes, I'm there, but my camera is not Yes, working. sure, sure. Yeah, continue, you continue. या सो ये बोला था कि मतलब यू कैन नॉट टीच पीपल हाउ टू डील विद पीपल. सो आई एंड बट आई कैन टीच यू द टेक्निकलिटी what my manager said. And I'm very happy to say that in 2 months I did catch up with everything that I am being offered to, like the trainings or the things that they have taught us. So मुझे अभी टेक्निकलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. हाँ, तो ये तो बराबर है। तो ये तो हो गया डीज एंड डोंट के बारे में। अभी आते हैं कि जो सबसे मेन चीज है, स्टार्टिंग में जैसे करी, एक्स्ट्रा करिकुलर और प्लेसमेंट का रिलेशन। अच्छा. एक्स्ट्रा करिकुलम मैंने ना लाइक I had this thing that I will add this thing to my resume, but I did not pursue it ऐसा कि I wanted this on my resume, therefore I am doing it. But मेरे को naturally inclination था ये सारी चीज़ों के लिए. सो अगर मैं वॉल ज्वाइन की थी तो मुझे नेचुरली अच्छा लगता था वो ज्वाइन करना. सो वो नेचुरली फ्लो हो गया. और आईटी में व्हेन आई एंटर्ड एंड आई सॉ दैट एनवायरनमेंट आई वाज वेरी लाइक fascinated. सो मुझे अच्छा ही लगा था पूरा एक्सपीरियंस. सो आई जस्ट वेंट एंड आई वाज लाइक कि अब एक ही साल बचा कॉलेज लाइफ में तो आई विल एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. So extracurricular, it naturally flowed through me, and I think it did help me a lot. मतलब 70% of my Weatherford luck, I would say, was based on my extracurricular. और वो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया थी वो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर के वजह से ही हुई है. एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल फॉर दैट. बोल रहा हूँ ना डेस्टिनी था कि ये हाँ, तुमने किया है, तुमको तुमको इधर भगवान ने ऐसा लैंड कर दिया कंपनी में. वो ओ तो है। ये तुमको रिक्वायर्ड ही है. हाँ, और वैसे भी जो भी हम लोग करते हैं सीखते हैं, तो वो कभी ना कभी आज नहीं तो 1 साल बाद क्या पता यूजफुल यूज में यस. आ जाए। वो तो है। वैसे पढ़ाई और मेरे साथ एक्सपीरियंसेस भी एक व्यर्थ हुआ नहीं है। जाते. हाँ हाँ बता ना. मतलब मैं कोडर्स में एक वर्कशॉप ले रहा था जावा का। तो हम्म. मैंने कैसे कि स्टूडेंट को सिखाना होता है तो अपन थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम वगैरह एग्जांपल अच्छे से ऐसा खुद से लिख के फिर ट्राई करके फिर लोगों को सिखाते हैं।
तो Yes. मैंने वैसे किया था, सीखा था। और उसके 1 वीक बाद मेरा डिलॉयट में इंटरव्यू था। और जो मैंने सिखाया था उसमें, उस वर्कशॉप में, सेम एग्जांपल मुझे कोड करने बोला। अभी अगर मैं ऐसा डायरेक्टली जाता तो मैं विदाउट प्रैक्टिस था वैसे जावा में। That's true. That's true. बट बट वो मैंने ऐसा सिखाया था, तो उसका यूज मुझे डिलाइट का जो इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्पफुल हुआ। मतलब ऐसा मुझे तभी ऐसा रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ मैंने वो वर्कशॉप लिया। मतलब ऐसा कभी कभी होता है वर्कशॉप लेते टाइम कि अरे यार क्यों सैटरडे संडे भी फुल पैक हो जाए। तो यूजफुल तो होती है चीजें कभी ना वो कभी। तो होती है, होती हाँ। ही है। लाइक जैसे हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर करते तो सम पीपल यूज्ड टू से ना, यार तू वेस्ट क्यों कर रही है अपना टाइम, डोंट यू हैव हाँ। एनीथिंग बेटर टू डू लाइक दैट। मतलब आई लाइक इट, लेट मी डू इट, लेट मी लिव, लेट मी बी हैप्पी। हाँ, ये तो है कि सब तो And रेज्यूमे के। as well as I wanted to add, Omkar, that you are हाँ। rich with experiences when it comes to placements, when it comes to exams, when it comes to giving multiple interviews and stuff like that. So I think that we should have a podcast with you as well, and we can basically bring all the people who have been on the Codeos journey, and we या can have this big cute sa podcast with everyone, and we can discuss your journey. यस श्योर, करेंगे हम लोग, ये भी करेंगे जल्दी। वो भी एंड देन सबको इंटरेस्टिंग फ्री होगा। मर्च चाहिए। मिलेगा ना। श्योर। काम चालू। देखो ओके, कोडोएस का डायरी है अपने पास। नेक्स्ट टाइम वी शुड हैव आवर ओन टी शर्ट्स, ओके, कोड ओएस एंड नेहल। यस, करेंगे हम लोग ये भी। तो ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर तो बहुत काम में आया है वेदरफोर्ड के प्लेसमेंट में। मैं ये बोलूंगी कि देखो कोई कोई प्लेसमेंट ड्राइव्स में ये काम ना आए, it was sheer luck that this company wanted this kind of position of responsibility, and I ठीक है। happened to be in the right place at the right time, तो हो हाँ। गया। तो I would say कि it's very optional in terms of what company you are applying for, so हाँ, just see through the नहीं company's तो बेसिक, requirement। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं दे आर होता, नॉट इंटरेस्टेड। they are like okay go home dear, you do not know how to code। हाँ, yeah, वो तो है। अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैसेज टू एस्पायरिंग इंजीनियर्स। बहुत ट्रॉमेटिक जर्नी होता है प्लेसमेंट का। अभी मुझे जूनियर्स मैसेज करते हैं कि और मेरा टीसीएस में नहीं हुआ फर्स्ट राउंड, मेरा इसमें इंटरव्यू नहीं हुआ क्लियर, तो अभी सब में रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो उनको ऐसा ऐसा होपलेस हो जाता है, मतलब गिव अप कर देते हैं लोग। तो उनके लिए क्या मोटिवेशन होगा कि क्या एंड करना। आई वुड से मेरे भी जूनियर्स कभी कभी कॉल करते हैं, देयर लाइक उनकी आवाज एकदम कम, जैसे हमारी थी ना, एकदम लो हाँ। वॉइस हो जाती थी बात करते करते प्लेसमेंट की, अरे यार यहाँ दिया था यार नहीं हुआ, यार यहाँ दिया था यार नहीं हुआ, अभी क्या होगा, अभी रिसेशन भी चल रहा है यार, हमारे बैच करना है, ये सब वो हाँ। सब चल, मतलब वो सब ऑन ही है। और मैं ये बोल रही हूँ ना कि इट्स सेम फॉर every batch, to be honest. हाँ, ये But तो I है। think it is difficult for this particular batch because everything is offline for them. हाँ। I would say that there are certain pros of being through an online placement process, and you know that, Omkar. We हाँ। all know that, all the seniors. I won't be very idealistic about our choices, but I would हम्म। say that there are certain pros of having online exams or online processes. But now everything is offline for them, so I give them a lot of love and comfort from my side. And I would say that be aware of the process, and like be aware in the sense that कब कौन सा placement drive चल रहा है, you should know that। हाँ। ठीक है, और इसमें लक तो 50%, आई वुड से 50% इज हम्म। लक। सो सिट थ्रू एवरी प्लेसमेंट, एंड इफ यू आर एमिंग फॉर अ कंपनी, देन गो ऑल इन। मतलब एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए इफ यू आर एमिंग, देन गो ऑल इन, उसको पकड़ लो, उसके बारे में सब पढ़ लो, एंड हम्म। देन अपना इंटरव्यू दे दो। दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच, राइट? और हम्म। अगर तुम मॉडरेटली ओके हो सॉफ्टवेयर में, तुम्हें नॉन टेक जॉब्स के लिए अप्लाई करने हैं या ऐसा कुछ है, तो आई वुड से बी ऑन अ लुकआउट, be on a lookout for consultancy agencies
फाइनेंस एजेंसीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, तो उनके लिए लुकआउट पे रहो कि तुम्हें नॉन टेक जॉब्स अगर चाहिए रहेंगे तो. So be very proactive in your thing. Do not abandon the process in any way. उसको उससे दूर ना जाओ बिल्कुल भी. Just be there. If you feel stressful, okay, you feel it, but you will get over it. हाँ अगर एक राउंड में तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तुम चीयरफुल हो जाते हो. अगर उसमें फिर सिलेक्ट नहीं हुआ तो यू विल गेट सैड. बट फिर नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टू अप्लाई फॉर. सो गो एंड प्रिपेयर फॉर दैट हाँ, इंस्टेंटली. वो तो I है। like that also. So हाँ तो that would be and be happy and enjoy your fourth year, please. मतलब वो लास्ट ईयर है यार. You should enjoy it to the fullest. Make ये तो memories. हाँ, ये बात बोलने के बाद भी वो वही करेंगे जो गलतियाँ करनी है वो नहीं करेंगे। Obviously उनको क्योंकि now they are going it through the first time ना. So हाँ जैसे अभी हमारे सीनियर्स थे तो वो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रिक्ट वाला डिमीनियर था उनका. आई वुड हाँ से कि थोड़ा स्ट्रिक्ट डिमीनियर था. भाई ये कर लो वो कर लो. सो आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट. पूरे प्रोसेस के बारे में बहुत डर गई थी मैं. और वो जो नींद ना आना रात रात को, इट वाज अ रियल थिंग ओमकार. हाँ एंड जस्ट हाई फाई कर दे एक बार उसके लिए. इट वाज अ रियल थिंग, दैट होल स्ट्रेस अबाउट ये वो यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लगेगा कि नहीं, वो जो पूरा स्ट्रेस था, इट्स अ वेरी हाँ रियल थिंग. सो आई थिंक दे विल गो थ्रू दैट. एंड आई थिंक वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है उनके लिए. सो दे शुड गो थ्रू दैट. एंड बट yeah, do not miss out on opportunities and experiences in your fourth year, क्योंकि बहुत प्रोलिफिक और बहुत चेंजिंग होता है, लाइफ चेंजिंग होता है ये प्रोसेस, ये ईयर तुम्हारे लिए. और उसके बाद उतना फन नहीं मिलेगा, आई वुड से. हाँ, सच है, बात है। And lastly, I have something to discuss. हाँ, Should I? यस अब श्योर। ओवर टाइम हो रही है क्या? नहीं था, हो गए 37 मिनट हो गए। Okay, okay. Omkar, I would like to ask, are you happy with your 9 to 5? अ, Be मेरा तो very honest. मेरा 11 to 8 है। यस, आई एम Hmm? हैप्पी, मतलब मेरा तो कंप्लीट वर्क फ्रॉम है, तो बेसिकली कभी कभी ऐसा लगता है कि हाइब्रिड हो जाए 2 दिन Hmm. ऑफिस में, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है ना कोई कंपनी के जो, और जो मीटिंग्स होते हैं उसमें तो हम लोग सिर्फ काम की चीजें डिस्कस करते हैं, फिर मीटिंग बंद। सो वैसे तो हैप्पी हूँ। 11 to 8 घर से काम है, पूरा एनर्जी बच रहा है, टाइम बच रहा है, पैसे बच रहे हैं। या Okay. वैसे तो हैप्पी हूँ। Yeah, same for me. Like I'm like यार प्लेसमेंट प्रोसेस में इतना रोए थे हम इस जॉब के लिए. तो अभी नाउ व्हेन आई फाइंड पीपल क्रिबिंग अबाउट दैट जॉब, मतलब जिनको डिसेंटली अच्छा पे मिल रहा है, जिनको नहीं हाँ मिल हाँ रहा है, तो इट्स ओके टू बी सैड अबाउट इट. और उसके आगे इम्प्रूव करने के लिए मतलब वो बहुत रेलेवेंट लगता है कि तुमको कितना किसा रहे हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग यू इनफ मनी, हाँ राइट. सो इट्स लाइक वो रेलेवेंट लगता है. तो आई आई लेकिन अगर तुमको डिसेंटली वो मिल रहा है, और मतलब इट मेक्स योर पेरेंट्स हैप्पी, द मनी मेक्स योर पेरेंट्स हैप्पी, एंड you are doing well for yourself. You do not have to ask your parents for money. हाँ And also uh, uh, so I think that I'm happy with my 9 to 5, because there are times, because remote job hai or night हाँ job hai, so there are times when people try to make me feel bad about it, and I'm हाँ। like एक मिनट. अरे नहीं, मैं बेसिकली तो क्या कभी होता कभी है। स्कैर्ड हो जाती हूँ कि भाई मैं इतना खुश क्यों हूँ. ये भी हो नहीं, जाता है अरे मेरे साथ. इशू क्या है कि लोगों को है ना, जिनके पास जो है उससे खुश नहीं है। जैसे अगर तू कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले बंदे को पूछेगी, तो वो बोलेगा, मतलब मुझे बोलेगा, अरे तेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, चिल है। अगर तू हम्म. कोई वर्क फ्रॉम होम वाले को पूछेगी, अरे कुछ नहीं रे, पूरा टाइम घर पे काम रहता है, का एक्स्ट्रा काम हम्म. करवाते हैं, हम्म. और वो भी रोएंगे। अगर तू कोई किसी हाइब्रिड वाले से पूछेगी तो बोलते, अरे नहीं यार, 2 दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, 3 दिन घर पे है, का ना इधर का ना उधर का। समझा. बेसिकली कोई खुश नहीं है। एक बात सही है, तुझे डरना चाहिए, वाई यू आर हैप्पी। Why I'm so happy about it? I हाँ think maybe because Weatherford जैसे ब्रैग नहीं कर रही हूँ, जैसे वो रिस्पेक्ट करता है एम्प्लॉय का टाइम. हाँ हाँ तो हाँ अगर तुम यू आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम 7 to 4
हम्म, 7 p.m. to 4 a.m. So हाँ उतने ही टाइम में तुमको काम देंगे, nothing extra. And they will understand if you want to leave, they will understand if you do not want to attend a certain kind of meet because तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत नहीं ठीक है ऐसा. So इसलिए मेरे को ऐसा बहुत cared ऐसा फील होता है. हाँ. So I am happy because of that. और ऐसा नहीं बिकॉज कि आई डू नॉट ड्रीम बिग, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज फॉर द 9 to 5 पीपल, कि यू हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, सो एटलीस्ट इंजॉय व्हेन यू आर डूइंग इट. इट्स ओके लाइक यू आर अपग्रेडिंग योर लाइफ, क्योंकि वो तो करना ही है, जीवन भर करना है अपने लाइफ को अपग्रेड. हम्म, मतलब अपना जर्नी नहीं इंजॉय करोगे तो हाँ. क्या फायदा, एंड ऑफ द डे क्या फायदा. Right. You will be chasing one complete from other your whole life, but you won't have that first job, you won't have that experience, you won't have that first call, right? हम्म, So I think that you should enjoy it completely. और वो जो right. हमारे मम्मी पापा एक रिलेशन अपने जॉब पे रखते हैं ना, यू हैव यू सीन कि जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो लोग दे मोस्टली वर्क इन वन कंपनी फॉर इयर्स लाइक द हाँ. ओल्ड पीपल, राइट. अभी वैसा Loyal. नहीं है. या लॉयल्टी वाली जो बातें आती हैं, फैमिली वाली बातें आती हैं. हाँ. सो नाउ द पीपल फ्रॉम देम, इवन इफ दे हैव शिफ्टेड, द पीपल फ्रॉम देयर फर्स्ट जॉब, दे स्टिल रिमेंबर हाँ. देम. हाँ. They still is in touch with them because of their goodness and because they loved what they did in that place, हाँ. how they treated people like that. तो मेरे को लगता है staying at one place stagnant होना ये नहीं मैं मानती कि इट शुड बी अ थिंग. यू शुड हाँ. कीप अपग्रेडिंग योर लाइफ, बट तुम जहाँ हो वहाँ इतने अच्छे से रहो कि फिर तुम्हें यार लाइक वो एक्सपीरियंस पूरा डिवावर कर पाओ और खुश रहो उस हाँ. चीज़ में, रिग्रेट ना करो कोई चीज़ लाइक दैट. सो बी हैप्पी वेर एवर यू आर एंड ऑलवेज एम फॉर द बिग थिंग. सो या बात तो बहुत सही है. सच. इतना सच. सॉरी. तो यार मस्त था अपना सेशन. बहुत इंसाइटफुल है, लोगों को यूजफुल होगा. इसके हम रील्स भी डालेंगे क्योंकि बहुत मुझे सारे दिखा देना छोटे बिफोर छोटे दैट. पार्ट्स हैं. या तो यार थैंक यू नेहल फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट. हमारे भाग्य खुल गए. अरे यार, यू आर टू स्वीट मैन, यू आर टू स्वीट. होपफुली But I, हम I missed Kodoes and I loved this conversation. I love this लेट्स conversation. लेट्स मेक दिस चैनल इंडिया बिगेस्ट इंटरव्यू पॉडकास्ट चैनल करेंगे इसको. Yeah! कोई भी बंदा कोई भी Kudos कंपनी to का that. पॉडकास्ट ढूंढेगा तो कोड इसका वीडियो मिल जाए उसे. Yes, placement podcast में हम number one बनेंगे. I हाँ. would say we need a reunion with a merchandise. So please plan that, Omkar. या श्योर. अभी उस पे काम चालू है. अभी कैसा Yes. कि इनकम भी आ रहा है तो इसमें कर सकते हैं कुछ. Hmm. ठीक है. That थैंक यू that's नेहल. great. या. Happy for you, Omkar. Happy for everyone on from our batch that they have landed such beautiful jobs and they are working from themselves. They are making their parents happy, and I'm proud of all of you. हाँ. Thank you. Thank you. थैंक यू. Bye bye. बाय बाय.